Good morning, students. So, in continuation to yesterday's lecture, so today we will start with some numerical problems related to the fins. So today we'll do some numericals for the to find out how to find the fin efficiency, effectiveness, and critical thickness of the insulation. Right. So I'm sharing with you PPT. Okay. So just we have talked about the fins and their thickness. So then we have derived a derivation to find out the critical thickness of insulation for a cylinder. After that, we have talked about how to find out the critical thickness of insulation for a sphere. So after that, we have done one numerical to find out the critical radius of insulation. Okay. So after that, the case number 2 is there to find out the rate of heat transfer with insulation and without insulation. So today, in continuation to that, we will do some more numerical problems. So write down the first numerical, that is in relate to the how to find out the fin effectiveness and efficiency, right? So bring your notebook and pen. I'm writing here a numerical, so you have to solve this numerical in the class time. Okay. Okay, sir. We have a steel rod whose thermal conductivity is equal to 32, and 12 mm diameter. We have a given with diameter, and length is also given to us, that is 60 mm long. With an insulated end. Is to be used as it is exposed to surroundings temperature हमें surrounding temperature दिया हुआ है, that is of 60 degree Celsius, and a heat transfer coefficient of 55. The temperature at a base, वो कितना है? Base of fin. The temperature base of fin is 95 degrees Celsius. What we have to find out? We have to determine number 1 the fin efficiency, number 2 the temperature at the edge of spine, and the heat dissipation. Okay, right?
So this is a numerical problem that you have to solve. A steel rod जिसकी हमें थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, a steel rod of thermal conductivity K, that is value given, and with a diameter of 12 mm and 60 mm is long, with an insulated end, is to be used as a spine. It is exposed to surroundings with a temperature of 60 degrees Celsius, and a heat transfer coefficient is also given to us, that is 55. Temperature at the base of fin is 95 degrees Celsius, so we have to find out the fin efficiency, the temperature at the edge of the spine, and the heat dissipation. So similarly, we have done the numerical in the classroom. So just try to find out these three values. Wherever you will stuck out, I will help you. Okay, just start with it. Have you got the question? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's try to solve it. सर जहाँ पे कल डेरिवेशन वाला पार्ट किया था वहाँ पे शिफ्ट कर दो। ये जो न्यूमेरिकल है दैट इज रिलेटेड टू द फिन एफिशिएंसी, वो तो आपकी थी दैट वाज अबाउट टू क्रिटिकल थिकनेस ऑफ फिन. ओके 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 सर। वो डेरिवेशन नहीं है. ये वाला पार्ट हमने क्लासरूम में किया था, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने इसको अटेम्प्ट किया था.
न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है मुकुल मोहित? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही थी तो बुक में से चेक कर रहे हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू यू आल्सो, तो साथ साथ में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 पार्ट थे। पहला था फिन एफिशिएंसी, दूसरा हमने क्या फाइंड करना था, टेम्परेचर एट द एज ऑफ द स्पाइन, एंड थर्ड वन इज द हीट डिसिपेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑल द गिवन डाटा। तो हमें डाटा क्या क्या गिवन है यहाँ पे, डी डायमीटर इज गिवन टू अस and that was in mm, so we have converted into the meters. Similarly length, so after that we have a ta, a की वैल्यू हमारे पास, h की वैल्यू है एंड t नॉट की वैल्यू है, राइट। ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन टू अस, ओके। तो पहला स्टेप क्या हमारा, सो वी हैव टू फाइंड आउट द पिन एफिशिएंसी। तो पिन की एफिशिएंसी निकालनी है, तो फॉर दैट वी हैव अ फार्मूला। तो फार्मूला हमें पता है, सो दिस इज द फार्मूला दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पिन एफिशिएंसी। So that is neta fin is equal to tan h ml divided by ml। तो m निकालने, जहाँ पे l की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, सो वी हैव टू फाइंड आउट द m फर्स्ट। सो फॉर दैट m वी हैव फॉर्मूला, ये हमने क्लास में किया ऑलरेडी, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द m। यहाँ पे p क्या हमारी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला पता है, पाई इंटू डी। So we have converted the p with the pi to d because we know the value of d here, हमें p की वैल्यू नहीं पता। तो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व आउट किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 4h डिवाइडेड बाय k d अंडर रूट, राइट। तो k की वैल्यू कांस्टेंट है, h की वैल्यू हमें गिवन है, k की वैल्यू गिवन है हमें, और डायमीटर गिवन है, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दीस ऑल पैरामीटर्स वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ये आपने फाइंड कर लिया, जहां तक हो गया था आपका? नो सर। ओके, तो क्या किया आपने पहले, सो हीट ट्रांसफर चेक करने लग गए। दैट इज द थर्ड पार्ट, वो थर्ड लास्ट पे आएगा बिल्कुल, ओके। तो ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाना, देखो जैसे में पूछा गया, पहले फिन एफिशिएंसी निकालोगे, दैट विल यूज इन द नेक्स्ट, दैट विल यूज इन द नेक्स्ट, ओके। तो नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ m एंड l, दोनों पैरामीटर हमारे पास गिवन है, so we will put the values, so and after that doing the calculation we will directly get the value of efficiency, that is 0.6218। so efficiency we always find out in the percentage, so that is 62.18%, right। so this is the answer, first answer। कितना आ गया यहाँ पे, 62.18, that is equal to 62.18%, right। first part is solved। तो द सेकंड वन इज द टेम्परेचर। अच्छा, इसमें कोई आपको यहाँ तक कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ओके, सो नाउ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, सो वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर एट द एज ऑफ द स्पाइन, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द T1, स्पाइन के एज पे कितना टेम्परेचर होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो अगेन वी विल पुट द फार्मूला, फार्मूला जो हमने ऑलरेडी हमारे पास है, थीटा अपॉन थीटा नॉट इक्वल टू T माइनस TA डिवाइडेड बाय T नॉट माइनस TA, राइट। तो हमने इसको आगे एलैबोरेट किया, ये हमारे पास फार्मूला था। तो हियर इन दिस केस x इज इक्वल टू l, हमारे पास जो x की वैल्यू किसके इक्वल है, l के इक्वल, ओके। सो वी हैव रिड्यूस दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ x इज इक्वल टू l, तो हमने इसको रिड्यूस किया, एंड आफ्टर दैट वी हैव पुट द वैल्यू, हमने इसको वैल्यूज को पुट किया यहाँ पे इसके अंदर, राइट। एंड आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ T1, that is 75.75 डिग्री सेल्सियस। जस्ट चेक आउट दिस वन, देखो कैसे हुआ ये। तो यहाँ पे क्रॉस द लेंथ ले रहे हैं, इसीलिए x इक्वल्स टू l लिया। यस, ठीक है। ओके, डन। so we have value of 75.75 degree Celsius। so now the last part, that is the heat dissipation। so for heat dissipation we know the formula, that means we have to find out the Q fin। हमें क्या फाइंड करना है, Q fin फाइंड आउट करना है। how will do that, ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। now we have value of K, we have value of M, value of T0, TA, सभी वैल्यूज हमारे पास हैं ऑलरेडी, M and L।
So put all these values in this formula, you will get the answer. Okay, let's do it. Solve करो इसको, बताओ आंसर कितना आएगा. हाँ जी, हो गया आंसर. सर वैल्यू आई है 23,929. So how you have done? Okay, so let's do here. ऐसे किया. नो सर, ये बीच में 5/4 ने लिया सर. क्या नहीं दिया? सर बीच में जो आपने 5/4 इंटू 0.012 का स्क्वायर लिया वो नहीं यूज की मैंने. अपन एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा. ओके. ठीक है ना. ये तो के की वैल्यू देखो ना, साथ में लिखा हुआ ना. हाँ जी. के के साथ एरिया क्रॉस सेक्शन लिखा हुआ है. हाँ जी. हाँ जी. तो उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा हमें. तो एरिया यहाँ से आएगा इससे हमारे पास. ठीक है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो. क्या बताओ क्या आंसर आएगा.
सर हेलो सर। हाँ जी, सर 2.7 आ रही सर वैल्यू। 2.7, just check me out. Yes, it's 2.7 watt. So both of you have solved it? दोनों ने कर लिया? तो हमारा गलत आ रहा है, कितना आ रहा है आपका? ज्यादा ही आ रहा है, 302.9 आ रहा है। Check the calculation. There might be some problem with the calculation part. Okay, so इसको चेक कर लेना, अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। Okay, so now let's do one numerical that is related to the critical thickness of insulation. जो हमने कल डेरिवेशन किया था उसके रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल कल भी किया था और एक आज करेंगे। तो विद दैट न्यूमेरिकल जो हमारा फ्रिंज वाला चैप्टर दैट विल कंप्लीटेड। ओके, तो उसके बाद आपने इसके न्यूमेरिकल हैं जो प्रैक्टिस करने हैं खुद। ओके सर। Okay, so here is numerical. A 10 mm cable is to be laid in an atmosphere of 20 degrees Celsius with outside heat transfer coefficient कितनी वैल्यू है इसकी? 8.5। The surface temperature cable is likely to be 65 डिग्री सेल्सियस। ये कल हमने डिस्कस किया था लेकिन कल इसको सॉल्व नहीं किया था हमने क्लास के अंदर, तो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइंड क्या करना है? बिल्ड द रबर इंसुलेशन, जो रबर की वहां पे इंसुलेशन है, जो कि हमें थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है दैट इज 0.155 भी इफेक्टिव। मैंने चेक करना है वो उसके लिए इफेक्टिव है उस केबल के लिए या नहीं है। अगर है तो कितनी है? इफ यस देन हाउ मच? Right, so this is the problem. A 10 mm cable is to be laid in atmosphere of 20 degree Celsius with an outside heat transfer coefficient में given है उसका 8.5. The surface temperature cable is likely to be 65 degree Celsius due to the heat generation within. जो जब उसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर से हीट जनरेट होगी ड्यू टू द फ्रिक्शन, तो उसकी जिसके कारण उसका टेम्परेचर है 65 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर रहा है। जो हमने रबर की इंसुलेशन वहां पे यूज करनी है उसकी हमें थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, तो हमें चेक करना है वो इस थर्मल कंडक्टिविटी की जो रबर इंसुलेशन है उसकी इस काम के लिए इफेक्टिव है या नहीं है। अगर है कितनी इफेक्टिव है वो, राइट? सो इन दिस केस यूज द प्रीवियस लेक्चर्स डेरिवेशन जो हमने की थी, ठीक है, उसके बेसिस को सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट डूइंग द दिस न्यूमेरिकल। जहां पे कोई दिक्कत आएगी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। ओके, so first of all write down all the given values to you। जो गिवन डाटा है उसको यहाँ पे लिखो। सबसे पहले मैं R1 की वैल्यू गिवन है, R1 दैट इज एंड डायमीटर गिवन है तो उसको हम हाफ कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 mm। ओके, T1 गिवन है हमें, कितना T1 हमारे पास? दैट इज 65 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ एयर इज आल्सो गिवन, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमें गिवन है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, राइट? K की वैल्यू गिवन है, and H naught is also given to us, that is 8.5।
ओके, तो केबल की बात करें, फॉर केबल दैट मीन्स इट्स लाइक अ सिलेंडर टाइप। केबल की बात करें, राइट, तो फॉर दैट, फॉर केबल, तो उसके अंदर हम जो सिलेंडर वाले हमारे पैरामीटर्स हैं, इक्वेशन है वो यूज करेंगे इसके अंदर। आर सी इज इक्वल टू के अपॉन एच नॉट। ओके, तुमने यहाँ तक आपको बता दिया। लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल, और इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी। सर 18.23 mm। Yes, right. So because we have value of k is this one, और हमारे पास 8.5, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 18.235 mm। ओके मोहित, आपने सॉल्व कर लिया? यस सर। नो सर, यही अभी आप जो फिल किया था वही किया। ओके, तो दैट मीन आरसी इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द केबल। जो आरसी की वैल्यू है रेडियस ऑफ स्लिट, ठीक है, आरसी क्या है, दैट इज द ग्रेटर देन द, सो इसका मतलब क्या है, अगर आरसी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ केबल, इट मींस दैट जो रबर इंसुलेशन है दैट इज अप टू द, अभी क्या करेंगे, देखो अभी करना क्या, हमने देखना इफेक्टिव है या नहीं है। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, कितनी वैल्यू हमारी 18.235, और हमारा रेडियस कितना है, दैट इज 5। ओके, वो 5 है, तो इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल इक्वल टू 13.235 mm। ओके, तो ये क्या है, जो रबर इंसुलेशन है दैट इज अप टू, जो अगर रबर इंसुलेशन की थिकनेस 13.235 mm होगी, दैट विल बी इफेक्टिव इन हीट डिसिपेशन। ठीक है, इतनी मतलब जो थिकनेस की इंसुलेशन होगी हमारे पास, दैट विल बी इफेक्टिव इन दिस केस। ओके, तो कैसे निकाला, जो भी वैल्यू हमारे पास आई आरसी की, तो उसको हमने जो हमारा रेडियस हमें गिवन है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे क्या आ गई हमारे पास, थिकनेस, इंसुलेशन थिकनेस आ गई हमारे पास। तो अभी हमने निकालना है हाउ मच, वो कितनी है। ठीक है, दैट मीन्स द मैक्सिमम हीट डिसिपेशन पर मीटर लेंथ ऑफ अ केबल विल कितनी होगी, द मैक्सिमम हीट डिसिपेशन पर मीटर लेंथ। ठीक है, कितनी करेगा वो, इफेक्टिवनेस के बाद निकालना हाउ मच, तो कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम के लिए हमें क्यू मैक्स चाहिए, ओवर द लेंथ निकालनी है हमने, विल यूज द डायरेक्टली फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था उस दिन, राइट। So this is the formula to find out the maximum heat dissipation per meter length of a cable. Okay, ये formula हमारे पास, so put down all the values in this formula and tell me the answer. सर यहाँ पे क्या है, एंटी लॉग आरसी बाय K1। ओके।
Okay. After doing the calculation, tell me answer. Okay, क्या आंसर आएगा? हो गया सॉल्व? नहीं हुआ अभी? सर 33.82। नो, मैंने यहाँ पे टेस्ट किए हुए यहाँ पे, जिस चीज को सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है? It will be 19.1. Okay, this will be your answer.